you can, prepare for it. Ravi, so you can be on the mute, please. Yeah. Okay. So yeah, before starting, a small intro of me. My name is Nitin Rawat, and I'm working in this digital marketing industry for more than say 12 years. So I started my career way back, like when the internet was very small scale, expensive, slow, and yeah, very rare to have. Like it was a big deal to have internet at at that time. And I started my career back then, and now because of the experience, exposure, and the scale of the internet is high, and the digital marketing has just say boomed a lot. I am into say strategy, operation, data analytics, and the data engineering as well. So I'm handling all those four factors because I started my career way back when everyone was doing like there was a time when one guy used to do everything. Like because of that, I have exposure in every domain, like say strategy, operation, advanced analytics, and the data engineering. At that point, only one guy used to make entire strategy, uploading those ads, or running those ads and everything. So there was a one guy used to do everything, but now the scale is high and everything is so high. We have a department for each stream. We have a department of strategy. We have a department of operation, analytics as well. So yeah, but I'm handling all of these stream because I have exposure in all. And yeah, because of this, I will say I request everyone to have that thing called jack of all, master of one, you can say at least. So yeah, it's very good to have at least one thing which in which you are a master, but you should be aware of the other elements in the industry, that how things are working, why things are working like that, what exactly are those things, and all those stuff. So this workshop is about the same. I have few insight to share with you all, because when I started my journey, there were only few resources out there who can help me out, like say to understand what is coming to in my future. But now, of course, we have videos, we have articles, we have so many things, and video especially. YouTube is like damn good. It has so many things. It has everything. I believe it's better a search engine. It's best, a search engine out there. If you just want to know, it's the best search engine. You can know any information about anything, like any scope of the stream, any how to study, how to excel, anything. So those things are there. So yeah, so let's start this workshop. I am here to share those insight now, which are a little rare to find, but I feel it is very helpful, and which are very like you might not able to see those things or those advices from anywhere else. So because of that, I have made those slides accordingly. Okay, guys. And yes, there is one more thing. I want the highest engagement. I'm just not a speaker who just speak without any engagement. I need something in the comment section. Okay. So like if I'm asking you, you understood. If in case of any doubt, please feel free to ask. There is no hesitation. Like, I might be asking a fool question or something like that. Don't think at all like that. This is a stage where you can ask me anything related to your journey towards your uh, professional life or your education as well. Cool. So please, it's a humble request to everyone, like we engage like highly attentive everything. Okay, then so let's start. I'm just about to share my screen. Just give me 1 minute so I can arrange the screen accordingly. I have two screen ka setup, so I can see one screen here, one screen there. So just arranging everything. Okay, let's slideshow. Okay, guys, just let me know when you can see my screen. Here you go. Everyone can see my screen. Yeah, yes, sir. Thank you for the update. So it's my basic intro, that who the hell I am, and why you should, why you should say, why you should say, listen to my me, like, or say my advice is that why
I am the genuine resource of the information. So source of the information. So yeah, like I have been working in this industry for more than 12 years. I have worked with multiple big brands. These are the big brands, but I have also worked for this small companies, startup. I started my journey from a very small company. Like it was a very small agency, only one big hall. I started my journey from there, and yeah, because of, I would say, hard work, god 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 grace, I have this exposure with the big account as well. And I'm working with a company called Merkle as the digital marketing lead in the analytics area especially. And yes, I do have exposure to so many tools. Like you can name any of the ad account out there, I have a very good exposure on the same. And I also know some of the advanced applications, say a Tableau, a Looker Studio, Datorama, and Adobe Analytics. And I also have my website on my name only. It's my name only, nitinrawat.com, where I upload the digital marketing articles, like, from the beginner to the expert section. And I'm very active on the LinkedIn account, so please feel free to connect on the LinkedIn. I keep sharing my insight, I keep sharing my, learning, whatever I have, whatever I can out there. So yeah, it's me in the smallest way. I can give my, like, my, a professional intro is almost of 8-10 minutes, I will say, but here I'm just wrapping up in say 4-5 minutes. Okay, so let's start. So this workshop, uh, yep, just 1 minute. Oh, so okay. ऐसा ऐसा भी करना है क्या अभी? I have to share the LinkedIn profile also. Just 1 minute, guys. So if I'm just sharing my profile link also so that you uh, can. अभी ये आखिरी में देख लेना, but you know, just sharing if in case मैं भूल जाऊँ आखिरी में. So okay, this workshop is mainly about the corporate resilience. You know, um, there are so many things, there are so many experiences out there. Someone will say that I love my job, and someone will say I hate my job. Now the interesting fact is, I want to ask you everyone, like, among your circle, I want to ask you, how many people hate their job among your circle? Like, I'm not saying, I know you all are students. Like among your circle, I mean your say your say family members, relatives, friends who are into job, or anyone. If you are also into job, how much of those people actually are into their job, or they enjoy their job, or they love their job? How many people out there? Any kind of percentage? Say a 90% are happy, a 10% are happy, or 50% are happy? Anything? I want the answers, guys, now. So, what do you think? How many people are happy with their jobs? Oh, sweet, sweet. 85% are sad. Sad. The sweet was that most of us are working in a batch. I'm very, very happy for you all. 85% are sad. Any more percentage you have, guys? I want to know just. I think 50%. Who else? Okay. Sakshi has shared a link. Just let me read the title, say title of that one, like what it is. Who else? Hey, don't go on my Instagram. I'm not active with that much. Okay. On Instagram, I'm not active, but yeah, on the LinkedIn, I am only 60%. Yeah. So the percentage is just not that healthy. Like, I believe everyone, should be happy. Why any one of us are, sad in our job? Why can't we happy in our job? So that's the thing which I'm going to explain. Like, where is, I believe,
there's a misunderstanding between the industry and between the employee. The industry and employee have a misunderstanding. I need to answer it out, because for me it was too hard too hard to say figure it out, but now I'm able to figure it out, somewhat. And I want to share those thoughts with you, everyone out there. And yeah, so this is there, like how you can be happy once you are in the industry, or you are entering in the industry as well. I know you have heard that I am giving so many interviews, the selection ratio is pretty small. I have all the skill set, I have all these education, but still I'm not up the bar. Then what is the issue, why I'm not able? And there is no company who will exactly tell you that why you're just not being selected. So that's the most scary part which I feel in the industry. But yeah, so I'm here to help you out for the same. Okay, guys, so let's start. So this entire workshop is into two steps. One is how to route the just so sorry know the route, like the route where from you have to travel inside the corporate. And once you are in the corporate, then how to thrive in that corporate, how to excel in that, how to be happy in your job. So those things are there. Okay, so first we will understand about the route, that how to enter, what is the right ways, like what is the right way to enter inside a corporate industry. And after that, once you have entered, we will also discuss how you can excel on it. Okay, excel in it. So let's check out the route first, how to travel. So the first thing first, uh like we have to pack our travel bags, right? But only with the right items. If we are like stuffing with some extra item, it's of no use. We are just increasing the weight of a size, sorry, of the bag. So those things are there. Once you are upskilling, you have to make sure that in whatsoever, I'm not going to tell you that which skill you should choose, or which skill you should not choose. What I am here to tell you, that these are the skills on which you have to focus on, like how to identify those skills, right? How to identify those skills, that these are the skills I should choose, I should upskill in. That is the main question we ask here. And why here and sorry here and there, like is this field has scope, it is how is this field, that and xyz. But what exactly filters are out there which we need to figure it out, that okay, these are the things I need to see, that is in my bag of the skill set. And so I will be helping on the same. So these are the three things which you should be similarly focusing upon. So the first thing is your interest. The most upmost thing I will say, the interest. If you have the interest, then only choose the stream. Don't choose those stream which is high in the boom but you don't have any interest. It will be too hard for you to excel in that industry. And only excel who are the expert, who are the know a topmost in that industry, are able to have that know a success. So if imagine like you are a sports car and I ask you to drive on off road, then it will be too hard for you, right? So you have to choose a stream according to you. So first you have to identify, are you a sports car, are you a SUV, are you a off road car, are you a on road one? You have to identify yourself first, that who the hell I am. And then accordingly you have to choose your stream. And the second thing which I will say is the money, that how much the money in this stream you have, like how much is the pay scale, the minimum wage, the highest wage in the term of the experience. And in the end, of course, the money is related to the demand in the market, right? If you have a high demand in the market and the supply is small, then of course the money will be high. So these are the three filters. Like if you are going to choose your any like skill set, stream, anything, just think among these three aspects. Like, is it in my interest? Does it have the money? Is it in the is does it has have a demand in the market? If these three things are there, then only opt for it. I will recommend. Cool. Like
I have seen many people are choosing some interest or something which does not has a demand in the market. It might have in the future, but for that you have to wait. And wait means say a loss of say experience, a loss of time, everything, right? A- In the end, a loss of say money. A time is the money, right? There might be a future, like there might be a scope after 8 10 years in this particular stream, but as of now there is no scope. Like the prime example I can say, one of the is say biotechnology is like, I did my engineering in the biotechnology, right? Still it is like still India is struggling in the same. So at that point there was say no one to tell me that choose your stream as per the demand in the market only. It's just not about your interest, right? So these things are there. You have to make sure the interest, the money, and the demand in the in the market is there, whatever you are choosing. Okay, guys, understood? Everyone, how many people are there who are actually listening to this workshop? Say, I am here. How many comments I can see on the screen? Okay, 3 hands up. Only one, I am here. 4 5, one clapping. Same to you. Okay, sweet, sweet. So now once you have packed your bag, after that is you have to choose the car. You have to choose a right car. So what happened, we all know that this is a skill. I thank you Urmilla, thank you so much. So yeah, now say coming back, choose the right car. Like once you have your skill set, like these are my skill set, I have to work on, I have to have in my bag. After that, you have to choose a car. I will explain you what exactly I mean here, right? Okay. So there are two skills: a technical skill and a soft skill. A technical skill is like a fuel in your skill set. Like you feel like, I should know more skills, I should know this or that, I should know C++, I should know HTML, I should know Python, I should know a Java, I should know everything. But very few of us actually work on the soft skills, which we feel like, nah yaar, ye itna important nahi hai. This is just not like, we like who is, we think like who is more technically smart is the actual smart. It's like that. But trust me, guys, in the industry, both has an equal ratio. But I will say, in the end of the day, soft skill has upper hand. A bit, I can say at least. Just imagine if I know everything about the industry, if I'm not able to communicate to you guys, then what will you think about me? Right? It's all in my head, right? I'm not able to communicate to you all. इसका क्या impact आएगा आप लोगों पे? Nothing at all, right? It will be like, he might be knowing, इसको पता होगा, but हमको, how do we know? Like if you see in any exam, like the most of the exams, say from IAS officers, from say uh, IIM interview and everything, there is an interview element included in the entire process. The same thing with the industry also. Industry में भी interviews होते हैं, right? You just might be very good in your technical aspect, but if how hard it is, how difficult the journey will be if you now, if you're just not able to speak it out, if you're just not able to explain it out. हमको लगता है कि टेक्निकल स्किल्स को इंक्रीज करना चाहिए, like I know this and that, it will, after that I will be replaced. But the picture is somewhere a little bit opposite. You know all the things, I'm happy for you. What else? Are you able to explain your skills? Are you able to explain your strategy, your idea, your learnings? If not, then what is the use of it, right? Imagine you have excellent idea, you have excellent strategy, but if you're just not able to simply communicate to the stakeholder or to the business owner or to your manager, then it's of no use, right? So because of this, I
believe that the soft skill are slightly important as compared to the technical skills. I'm not saying the technical skills are not important. They are also important. They have their own place, but the soft skills also have their place. Okay. So how you can improve your top, say, soft skill? Like I have seen, like for me, it was pretty hard to talk to a camera, but eventually I started doing that. Ideation part, how many ideas you can generate, a practical ideas, I mean, or just not a haywire idea. A teaching skills, it's a pretty hard skill to have, but it's very important skill. I will also explain you why. Your presentation skill, how good you are in your similar presentation. Just imagine me, if I don't have this energy which I have as of now, I just might be like, hey guys, welcome to my workshop. I will be explaining how to excel in your industry. How it will feel to you guys, right? It will be so low energy. Do you have that energy in your presentations? Do you have that vibe? The positive vibe in your presentation is the most, you know, one of the most important element. And your writing skills. Yes, yes, yes. In the corporate life, writing skills matter a lot. Like in your emails, in your chats, how you communicate. The vibe of your email is so damn important. It's just not about the information in the email, the vibe. Are you being humble? Are you being arrogant? Are you being a narcissist? Are you being like a teacher or over explainer? Like, whatsoever, how you are. The vibe of that mail is pretty important. So it will only get improved like with your writing skill set. So please do work on your writing skill sets as well. And also there's one more thing I just forgot to add it up in the starting of the slide, that please feel free to take screen images of the slides. If you feel this slide is important to you, just take a screen image of the same. Okay guys. Hey, please start skip. जनाब बताओ इसके बनने की टाइम बच रही है सुनाई नहीं आ रही क्या? Who is on unmute now? Mohit? मेरा भाई Any doubt, guys? Any doubt, guys? I don't know. I was mute. Say in case of no doubt. हाँ सर। Awesome. सर मेरा एक क्वेश्चन है। Yes, Ajay. सर एक कॉमन सा है, मुझे पता नहीं सही है कि नहीं सही है, बट मैं थोड़ा पूछो इतना मत थिंक करो, जस्ट आस्क, आई एम हियर। क्वेश्चन ये है कि जैसे इंजीनियरिंग फील्ड में या टेक्निकल फील्ड में उसमें काम जो सॉफ्टवेयर मतलब इंजीनियरिंग फील्ड में कोई भी है, सॉफ्टवेयर पे या हार्डवेयर में या मैकेनिकल में, किसी में भी, अगर उसको काम करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको काम आना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? अच्छा अजय, ऑफिस में मेरे को एक आंसर करना, ठीक है? इन एनी इंडस्ट्री आप अकेले वर्क करने वाले हो या और भी लोग होंगे आसपास? सर और भी लोग तो होंगे। और भी लोग होंगे, है ना? जैसे अगर आप अपनी बात औरों को नहीं समझा पा रहे हो तो आप वर्क कर पाओगे? नहीं, मैं उस कंडीशन में तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, बट है ना? ये आप नहीं कर पाओगे। आपको अपनी बात औरों को समझाना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपको वो काम आना। आप अगर किसी को समझा ही नहीं पाओगे, बता ही नहीं पाओगे, अच्छा वो सब आप हटाओ अजय, मैं वो सब भी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। वो तो चलो ये स्टोरी है कि ऑफिस में एंटर हो गए। इंटरव्यू में फिर क्या होता है अजय? इंटरव्यू में क्या ऐसे होता है कि आपको बोला जाएगा कि डू डू दिस थिंग? होते हैं कुछ असाइनमेंट्स आते हैं, बट वो असाइनमेंट्स होते हैं। बट इंटरव्यू क्यों होता है? अगर आपकी पर्सन के लिए होता है कि उसको मतलब आप उसको पर्सनालिटी को एग्जैक्टली वही तो। अगर आपकी रेज्यूमे, आपका टेक्निकल स्किल सब बहुत अच्छा है,
मैं खुद कितनी बार हुआ फिर रिजेक्ट। मैं खुद हुआ हूँ, कितने और लोग हुए हैं, सब हुए होंगे। अगर कोई बोल रहा है ना मैं आज तक रिजेक्ट नहीं हुआ, आई डोंट बिलीव दैट गाय। बट इंटरव्यू क्यों होता है? इंटरव्यू का मतलब क्या है? पर्सनल इंटरेक्शन एंड राइट। अगर सिलेक्शन होना होता, रेज्यूमे मेल आ गया, आपका देखा, हायर्ड, इंटरव्यू क्यों आ रहा है बीच में? और इमेजिन आप बहुत अच्छे हो अजय, आप बहुत अच्छे हो टेक्निकल में एंड एवरीथिंग, आप इंटरव्यू में गए बट आप कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाए उसको, आप सिलेक्ट हो जाओगे? या आप या एनीवन विल बी सिलेक्टेड? नहीं, वो नहीं, उस No, sir. कंडीशन में तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये है कि अगर सामने वाला कोई बंदा, आप कमांड दे रहे हो, मेरे को कोई भी काम बोल रहे हो, मैं वो काम करने में सक्षम हूँ पूरी तरीके से, और अपने काम को एक्सप्लेन करना भी मुझे आ रहा है। मुझे आप जो बोल रहे हो मुझे वो समझ में आ रहा है। जैसे लैंग्वेज डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि होता है ना कि कुछ दूसरे स्टेट के बंदे हैं या ऑफ कोर्स, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, बट वो अपनी वर्क में, फील्ड में एक्सपर्ट है। ऑफ कोर्स। लाइक अभी अभी आप एग्जांपल है, जैसे नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह में, इन दोनों में बहुत तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। अभी क्या आप में देखेंगे 10 साल का दोनों लोगों का कार्यकाल था, लगभग हो ही रहा है पीएम का। तो इसमें क्या था कि एक बंदा है जो मनमोहन सिंह थे, उनका टेक्निकल स्किल्स और जो उनकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज थी, उनके बेसिस पे उन्होंने 10 साल वो परफॉर्मेंस दिया है कि आज तक कोई नहीं दे पाया। बट लोग उनको अलग ही वर्ड से जानते थे, मौनी मनी बाबा। सी बट वही आज ना, एक वही दूसरा लोग क्यों पर्सन है। उनको ऐसे फिर जानते हैं। आई एम नॉट टेकिंग एनी साइड हियर, सॉरी टू इंटरप्ट, बट आई एम नॉट टेकिंग एनी साइड हियर, बट आई अंडरस्टूड योर पॉइंट। वही कि दिस एंड दैट कि ए एंड बी क्यों ऐसा है। सो एक टेक्निकली स्ट्रांग है, एक कम्युनिकेशन में स्ट्रांग है। अजय, देखो ऐसा नहीं है कि टेक्निकल इंपॉर्टेंट नहीं है। आई एम नॉट सेइंग एट ऑल कि ये टेक्निकल नहीं है, इंपॉर्टेंट, टेक्निकल इंपॉर्टेंट है, बट अपने आप को फिर कम्युनिकेट करना भी उतना इंपॉर्टेंट है। आई हैव सीन सो मेनी पीपल आउट देयर इन द इंडस्ट्री जो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, बट दे आर जस्ट नॉट एबल टू कम्युनिकेट देयर आइडियाज, दे आर जस्ट नॉट एबल टू रीच आउट टू द राइट पीपल, और इंटरव्यू में अच्छे अपीयर नहीं कर पा रहे, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। बहुत हर्ट होता है मुझे कि यार उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा क्यों? हो जाना चाहिए था, इतना स्ट्रांग है वो फिर टेक्निकली। बट इट्स अ सैड रियलिटी। अगर मैं भी आज अजय आपके आगे इतने अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, तो आप भी मेरे से ये सवाल आके नहीं मुझे पूछते। आपको लगा कि नहीं, he has ability to answer, so because of that I can ask him. The same thing is here. Okay, see, everyone to everyone, uh, there might be some opinion, you might be opposing it, but it's my thought, it's my experience, and it's not only my experience, I will say, like the one, like मेरे को कितने years का हो गया, 12 years का experience हो गया, तो I have also met जिनको मेरे से बहुत ज्यादा years का experience है, या जिनको मेरे जो अभी start कर रहे हैं career, anyone. So I have a huge variety of it. तो ये जो भी insight है ना, these are the abstract of those experiences. Okay? So वो एक है, on an average ये देखा गया है कि जिसकी सॉफ्ट स्किल अच्छी है, वो अपनी टेक्निकल स्किल को अच्छे से बता पा रहा है, उसका थोड़ा सा ऊपर आ जाता है एडवांटेज। ओके, चलो, थैंक यू अजय फॉर आस्किंग, आई होप आई वाज एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। ओके, Yes, sir. थैंक यू मैन। सो अभी इस पे ही आती है बात। जस्ट इमेजिन कोई है जो मैंने क्या, जो हर एक ने बहुत देखा है इंडस्ट्री में कि there is someone who has a very good presentation skill set, and one stream say analytics में बहुत strong है, he or she is aware of Tableau, a Power BI, and so many other application. But on the other hand, we see someone, just imagine yourself as an interviewer who is taking interviews, and you know आपने एक का इंटरव्यू लिया, हु इज वेरी गुड इन द प्रेजेंटेशन स्किल, एंड ओनली द स्लाइड अच्छी बनानी आती है, इट मींस ओनली द प्रेजेंटेशन, एंड इन द एनालिटिक्स ही और शी इज ओनली अवेयर ऑफ few tools. On the other hand, you just interview another guy
who has a very good communication skill, who have a very good presentation skill, and also a very good, say, a leader, like who can organize a team, do the project management. And on the technical aspect, he or she has a very good strategy part, who has worked with the no different industry, who has operational work as well, who has a knowledge of different ad accounts, imagine analytics, as well as the data engineering. So now I would say, like, to ask you all, who will you hire, the left one or the right one? अगर ये दो लोग आ गए, this one is very common and which is very rare, which, और दोनों का एक्सपेक्टेशन एक है, कोई एक एक्स्ट्रा इनकम नहीं मांग रहा है, they are saying कि yeah, I am happy with that income. The right one. Why? This is the fact of the industry. We मतलब हम सब, we are the one who is increasing the bar, who are increasing the bar here. When we appear in an interview, we see that और किसको कितना कितना आता है, उसको इतना आता है, इतना आता है, मैं आपको एक चीज और ऑफर करने को तैयार हूं, आप मेरे को हायर करो. It's a fact. So what you can offer more to a company, it's the most important thing. Like, if you're asking for a selection, if you're asking for a raise, if you're asking for a salary, also ask yourself कि what you are offering to them as well. कोई भी किसी को फ्री में कुछ नहीं फिर देता. मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है, अपने भी अपने को नहीं देते. मतलब लाइक आई कैन से, अगर मैंने स्कूल में स्कोर किया तो मेरे पेरेंट्स मेरे को अच्छी अच्छी फिर तारीफ करेंगे, अगर नहीं किया तो कल के दिन हल्ला भी होगा. राइट, फॉर मी एटलीस्ट आई कैन से, राइट. कोई भी किसी को फ्री में कुछ नहीं मिलता है. यू हैव टू डू समथिंग. एक हाथ लो, एक हाथ दो, एक्सचेंज है. आपने कुछ अच्छा किया, आपको अच्छा मिलेगा. आप एक कंपनी को क्या ऑफर कर सकते हो, तो कंपनी आपको ऑफर करेगी. आप कंपनी को इतना कुछ ऑफर कर सकते हो, कंपनी भी आपको इतना कुछ ऑफर करेगी. क्योंकि एंड ऑफ द डे इधर भी इंसान है, उधर भी इंसान है. ऐसा नहीं है कि here are the humans, there are the robots. ऐसा नहीं है. Humans are everywhere. Human psychology is very, very similar to each other. Right? Absolutely, absolutely. So अपने आप को इसमें स्किल सेट करो. So मैं वही बोल रहा हूँ कि एक एक अगर एक कर लिया सॉफ्ट स्किल, एक कर लिया फिर टेक्निकल, उसके बाद आई हैव सीन सो मेनी पीपल लाइक एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री. अरे बाहर जाके देखो, बहुत कुछ और भी ऑफर कर रहे हैं. राइट, तो वो सब एक है. अच्छा, मैं थोड़ा सा स्लाइड जल्दी चेंज कर दी. बट नाउ इज अ थिंग, अब आप ये बोलोगे नितिन, आई एग्री विद यू, बट अमेजिंग पॉइंट, ये भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए. आई एम लाइक या ट्रू दैट, बट नितिन हाउ टू अपस्किल? मेरा सिलेबस इतना ही है, मैं इतना ही कर सकता हूँ, या मैं इतना ही फिर कर सकती हूँ, मेरे को और मैं आउट ऑफ स्कोप, हाउ कैन आई गो, हाउ कैन आई अपस्किल? आवर्स इश्यू है, बजट इश्यू है, देयर आर सो मेनी इश्यूज, राइट. एंड चलो ठीक है, वो सब मैं एडजस्ट भी कर लूं, देन हाउ, लाइक आई शुड टेक माय स्टेप अहेड, लाइक क्या मैं फर्स्ट स्टेप लूं, लाइक व्हाट विल बी माय फर्स्ट स्टेप. सो ओके, द फर्स्ट स्टेप इज learn by creating. What happened nowadays, most of us are just only learning. We don't make anything. Like in my era, like 12 years back when I was in my engineering days, I was like कि theory है, आज theory है कि practical है. एंड आज के टाइम में थ्योरी इतना बढ़ चुका है, कोई हद ही नहीं है. अब आप बोलोगे नितिन कहाँ है इतनी थ्योरी है. if you are simply watching videos, if you are simply watching reels, those are the theory parts. आप सिर्फ देख रहे हो, आप एक्चुअल में कुछ खुद नहीं कर रहे हो. And those are the practical parts. So learn karo to make something. Okay, just I am just reading one comment. Soft skill है हमारे अंदर, तो हमेशा एज अ फ्रेशर टेक्निकल स्किल को कितना सिखा सकते हैं, क्या सीखा चाहिए एक अच्छी कंपनी.
Sanjay, sorry, Sujay, just stay with me. I will be explaining you everything. Just stay with me. Cool? Okay. So, Yes, sir. सीखो कुछ एक्चुअल में कुछ वर्क पे करने के लिए, बस वो सीखो मत. Like if you know there is an application, you are just simply watching the videos. कुछ नहीं होने वाला. You have to exactly you have to watch those videos and you have to do something. Watch, do something. Watch, do something. Anything. Simply watch से कुछ नहीं होने वाला. Watch, learn. Watch, learn. Read, learn. Sorry, read, do. And after that, read और से मतलब watch, do ऐसे. Understood, guys? So अभी क्या है, एक इसमें सवाल आता है कि हमको नहीं पता क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. जो मैंने आपको बताया था कि ये है, once you have selected the filter, you do this thing. Okay? Now आप ये बोलोगे कि चलो फिर नितिन, आई एम ऑल इन. अब मैं आई विल स्टडी एंड डू. बट व्हाट एग्जैक्टली आई हैव टू स्टडी एंड डू? हियर इज द आंसर. स्किल सेट 1, कुछ भी उठा लो. इट्स ऑन यू गाइस. जो मैंने आपको बताया था वो जो है, फिर 3 का वो थी कि इसमें इंडस्ट्री में नहीं, फर्स्ट इंटरेस्ट है, इंडस्ट्री में उसकी डिमांड है, एंड देयर इज द मनी. चूज द स्किल सेट. उसको स्किल को करो, उसको अपस्किल करो, उस पे आर्टिकल लिखो. स्किल 2 कुछ और उठा लो, उसको लिखो, उस पे वीडियो अपलोड करो. फिर स्किल 3 कुछ भी, उसको फिर अपलोड करो फिर सोशल मीडिया में. स्किल 5 कुछ भी सीखो, या 1 2 3 4 5 सबको ऐड करो, उसके लिए अपनी एक अलग ही बना दो, वेबसाइट बना दो. There are so many things which you can do with your skills. हमको क्या लगता है कि मैं जब हायर हो जाऊंगा, जब किसी कंपनी में हो जाऊंगा, कोई कंपनी मेरे को सिखाएगी, मैं तब वो स्किल अप कर लूंगा. नहीं होता ऐसा. इंस्टीट्यूट और कंपनी में एक फर्क है. इंस्टीट्यूट में हम पे करते हैं सीखने के लिए, कंपनी हमको पे करती है कुछ काम पे करने के लिए. कंपनी आपको नहीं सिखाएगी. ये एजुकेशन सिस्टम अलग है, कंपनी सिस्टम अलग है. और यू नो एंड ऑफ द डे वो आपके ऊपर है. इंस्टीट्यूट कितना भी कर दे, कंपनी कितना भी कर दे, मैंने बहुत लोग देखे हैं, ना ही वो इंस्टीट्यूट से कभी हैप्पी थे, ना ही वो कभी अपने ऑफिस से हैप्पी थे. अपने आप से अपना ना इंचार्ज लो ऑफ योर लाइफ. कि ठीक है, मैं ये सीखा, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, मैं उससे और क्या फिर कर सकता हूं. मैं बस सीख गया, उससे सब कुछ हो जाएगा? नहीं. मैं या फिर सीख गई, लोग अपने आप आएंगे मेरे पास? नहीं. आपको लोगों के पास से जाना पड़ेगा, आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि हियर आई एग्जिस्ट विद ऑल द स्किल सेट. अच्छा, कभी आपने थिंक किया कि दिस बिग कंपनी, थम्स अप, कोक, पेप्सी, सबको इनका नाम पता है, राइट? एवरीवन नोज देयर नेम, but they're still spending on their ads. They still make ads. Why? Any idea, guys? सब उनको जानते हैं, right? Everyone of us know Coke, Thumbs Up, this. There are so many brands out there जिनके बारे में सबको पता होगा, but वो आज भी ads में इतना spend करते हैं, क्यों? Any idea? No, not to compete. वो तो obviously है, अपनी presence दिखाने के लिए. Exactly, रितेश, बहुत सही आंसर दिया. एग्जैक्ट. न्यू कुछ भी नहीं लेके आ रहे. दे आर सेइंग कि हम हैं इधर, कोई नया फ्लेवर नहीं आया फिर थम्स अप का, कोई नया फ्लेवर नहीं आया फिर कोक का. वो नहीं लेके आ रहे न्यू के वेराइटीज एंड ऑल. दे आर लाइक वी आर हेयर. दे आर इंक्रीजिंग देयर रीच एज मच एज दे कैन. नई 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 जनता बाहर आ रही है. देयर इज अ न्यू के पॉपुलेशन एवरी डे. क्या वो हमारे लिए, क्या वो हमसे अवेयर है? See, end of the day, your reach matters a lot.
जब ये बड़ी कंपनी जो सब इनके बारे में जानते हैं, दे आर स्टिल वर्किंग ऑन देयर रीच, तो हम क्या उनके आगे? आपको नहीं लगता कि हमको भी अपनी पे रीच पे वर्क करना चाहिए? हमारी रीच ही कितनी है, कितने लोग मेरे बारे में जानते हैं, आपके बारे में जानते हैं? हार्डली 100, 1000, 2000। इनकी रीच पता कितनी कितनी होती है, राइट? रीच बढ़ाओ, अपनी रीच, कितने लोग आपके बारे में जानते हैं, वो बहुत मैटर करता है। वंस यू अवेयर अबाउट लाइक, अब जब आपकी रीच, अब क्यों इतना करता है मैटर, जब कोई रीच अगर इतने लोगों की होगी तो आपके पास अपॉर्चुनिटी की उतनी पे चांसेस इंक्रीज होंगे। You apply to a job, you apply on a naukri.com, you apply on a internashala, क्या होता है उससे? You are increasing your reach, right? End of the day, और क्या कर रहे हो? इंक्रीज तो कर रहे हो ना रीच, कि मेरे पे चांसेस हो जाए टू बी प्लेस्ड, एक्सपोजर, है ना? वही चीज करनी है। चलो, now how to increase your reach? Now how to increase your reach? You have to make your portfolio. First of all, you have to make your portfolio, जहाँ पे अपना एक रेज्यूमे बनाओ बहुत अच्छा सा, जो एक पेज में हो जाए, जो आजकल जो टूल्स ऑप्टिमाइज्ड हो, ठीक है? एंड एंड यू नो, प्लीज, इट्स नॉट, हाउ शुड आई से इन हम्बल वर्ड्स, रिक्वेस्ट तो नहीं बोलूंगा, ऑर्डर बोल सकता हूँ। ऑर्डर है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स है, लाइक फॉर माई एक्सपीरियंस गाय, कि अपना लिंक्डइन अपडेट करो। इंस्टाग्राम से मेरे को मतलब ही नहीं है, कुछ इंडस्ट्री कोई मतलब नहीं है, आपके लिंक्डइन से मतलब है। इंडस्ट्री, महेंद्र सिंह धोनी की स्टेटमेंट मेरे को भी याद आई, बड़ी अच्छी लाइन थी, कि प्लेयर्स सोचते हैं कि इतने मेरे इंक्रीज हो गए हैं फॉलोअर्स या नहीं हो रहे हैं, दिस एंड दैट। ही वाज लाइक कि फोकस ऑन योर फील्ड, फोकस ऑन योर क्रिकेट, सब कुछ अपने आप बढ़ेगा। तो लिंक्डइन हमारा वो फील्ड है, फील्ड ऑफ द से क्रिकेट, जहां पे हम अपनी परफॉर्मेंस को शोकेस कर सके, वेयर वी कैन शोकेस आवर स्किल सेट एज वेल, our experiences, everything. So here's the thing. So update your education, update your experience, update your skill set, update your certifications. तो फर्स्ट अपना वो बनाओ, फिर ये बनाओ, फिर ये बनाओ, फिर रेज्यूमे, फिर उसके बाद अपना फिर लिंक्डइन अपडेट करो। एंड आफ्टर दैट, हो सके तो ई बुक्स बनाओ। ई बुक्स बोले तो पीडीएफ, where you can make some PDF about your portfolio. If you are into a designer, जो भी किया फिर डिजाइन, उसका एक अपना मतलब कि पीडीएफ बनाओ। इफ यू आर इनटू ऑथर और राइटर, जो भी किया है राइट, उसका एक बनाओ, दैट का पीडीएफ बनाओ। और जितना स्पून फीड हो सके उतना स्पून फीड करो, मेक इट इन अ नो अ सेगमेंटेड फेस, मेक इट इन अ हाउ शुड आई से इंटरेक्टिव वे, कि अगर आपको इसका आर्टिकल देखना है, आप इसको ओपन करो, इसका आर्टिकल देखना है तो उसको ओपन करो, स्पून फीड एज मच एज यू कैन। क्योंकि रिक्रूटर के पास इतना टाइम नहीं होता, दे हैव टू गो थ्रू सो मेनी एप्लीकेशंस, and how you can make your application stand out, that is also very important, right? Okay guys, so after that, जब ई बुक वगैरह हर चीज हो जाए, तो जब कि ये भी हो गया, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, you can in the end of the make your website also, make a website, it is so easy to make, आजकल कोई हद ही नहीं है। you know there was a time when email id was an impressive thing, nowadays is a website। ईमेल आईडी तो आज के टाइम में हर एक के पास है। हाउ यू आर स्टैंडिंग आउट, बिकॉज वन पेज का रेज्यूमे नहीं कर पाता काम, स्पेशली इफ यू हैव सो मच ऑफ स्किल एंड सो मच टू से अबाउट, एक पेज में वो नहीं आ पाता। तो एक बना दो ना अपनी, एक बना दो अपनी जिस सिमर की वेबसाइट, जितने पेजेस बनाने उसमें उसमें करना, जितने एक्सपीरियंस ऐड करना उसमें ऐड करना। मैंने क्यों बनाई अपनी दिस सिमर की वेबसाइट, इसलिए कि मेरे को इतना कुछ आता है, मैं एक पेज में नहीं बता सकता। Cool guys, so make a website,
ओके एंड कोई अगर दोस्त वोस्त हैं जो अटेंड नहीं कर रहे हैं वर्कशॉप, उनको बोल दो कि अटेंड कर ले, उनके भले के लिए है, ठीक है। चलो अगला कुछ बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। Everyone will say कि Nitin, I can do all this thing, I want to upskill, I want to educate, I want to do this and that, but how the hell I can do this thing, how to learn? और जहाँ पे भी मैं करने जाता हूँ लर्न, वो आपका एक्सपेंसिव है, फीस एंड ऑल, एंड यू हैव ऑल द आंसर ऑन दिस स्लाइड। यू कैन लर्न फॉर फ्री, ट्रस्ट मी गाइस, आज के टाइम में तो खासकर post this community pandemic, the remote work has a huge advantage, for you all. It's a huge advantage. You can work for so many companies out there, कोई हद ही नहीं है. And to be honest with you, I see so many people in the interview. मैं इंटरव्यू मैंने कितने लिए होंगे मुझको नहीं ध्यान, मैंने ये किया, मैंने उसका अगर आप देखोगे ना, फिर वो देखोगे ना, फिर रेज्यूमे इंप्रेसिव, ये सर्टिफिकेशन वो सर्टिफिकेशन, स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ, अभी तो मैं खैर इम्यून हूँ, मैं तो मैं देखता भी नहीं हूँ सर्टिफिकेशन क्या है, क्योंकि सर्टिफिकेशन इजी है, हो जाते हैं, इधर उधर से हो गए, आंसर पता होते हैं, अटेम्प्ट्स होते हैं, कुछ भी है, इजी है, हो गए। इट्स नॉट दी के बहुत सारे लोग अपलोड करते हैं फिर लिंक्डइन में, मैंने ये सर्टिफिकेशन कर लिया, वो सर्टिफिकेशन कर लिया, एंड लाइक हाँ तो मैं क्या करूँ, इंटरव्यू में तो नहीं हो रहे ना आप सिलेक्ट। अगर आपका सर्टिफिकेशन से ही आपका सिलेक्शन होता, तो जितनों के पास हाई सर्टिफिकेशन होते उनका उतना सिलेक्शन होता, ऐसा नहीं होता ना। बट एक आयरनी बताऊं आप सबको, मैं डिजिटल मार्केटिंग में इतना एक्सपर्ट हूं, मेरे को इतना टाइम हो गया इंडस्ट्री में, मैंने आज तक इसका एक भी कोर्स नहीं किया सर्टिफिकेशन का, एक भी, सच बता रहा हूँ। एंड आई एम नॉट सेइंग आउट ऑफ नोवेयर, अगेन मैं जैसे बताया था, आई बिलोंग टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द स्ट्रीम। जब मैंने स्टार्ट किया था करियर, कोई नहीं था इंस्टीट्यूट के बताने के लिए, कोई नहीं था सर्टिफिकेट, बट उसके बाद भी हो गया। क्यों? बिकॉज आई वॉज डूइंग द जॉब इन एक्चुअल। मैं स्टडी नहीं कर रहा था, मैं इंप्लीमेंट कर रहा था। ऑफकोर्स स्टडी करने के बाद, बट थोड़ा सा स्टडी किया फिर इंप्लीमेंट किया, थोड़ा सा स्टडी किया फिर इंप्लीमेंट किया, ऐसे था। But the industry or HR might not have time to look at the website or resume for more than a page of a candidate. आकांक्षा, जब आपका रेज्यूमे जाएगा ना विद योर वेबसाइट लिंक, तो उसको लगेगा कि क्या इसमें अलग है, जो इसने अपना, हर कोई अपना ईमेल आईडी देता है, फोन का फोन का फिर नंबर भी देता है, बहुत ही रेयर होते हैं जो अपनी वेबसाइट का लिंक भी देते हैं। जस्ट इमेजिन योरसेल्फ, अगर आप हो एक रिक्रूटर, आप इतनों के देख रहे हो फिर रेज्यूमे, अगर आपको एक की मतलब वेबसाइट में, एक के रेज्यूमे में वो दिख गया, अब वेबसाइट का लिंक, आप ओपन नहीं करोगे, आप बोलोगे ये क्या है, इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत ही वो है, फिर रेयर है ना। अगेन इट्स एन ऑप्शनल थिंग, डू इट। मतलब मेरा तो ये हिसाब है कि बिफोर सेइंग एनीथिंग इज बैड अबाउट एनीवन, आप ये देखो कि आपने हर काम किया नहीं किया। इंडस्ट्री को ब्लेम करने से पहले अपने आप को देखो कि जो इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही है वो मैंने हर काम किया नहीं किया। अगर वो सब कुछ चेक 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 है तो ही आगे बढ़ के बढ़ो। Okay, now for coming back to this point, how to learn for free, and a much, which is also much better than the a no certificate. Do the unpaid, or say a paid internship. If you are into a job, I'm more than happy for you guys. बट ये उनके लिए स्पेशली जो मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि नितिन हमने एजुकेशन कर ली, एवरीथिंग वी हैव दी सर्टिफिकेशन, बट उसके बाद भी प्लेसमेंट नहीं हो रही है। आई एम लाइक जस्ट लोअर द बार अ बिट, है ना। अगर कोई वेट उतना नहीं उठ रहा है तो हल्का वेट करो, थोड़ा सा उसको उठाने की प्रैक्टिस करो, जब वो उठना शुरू हो जाएगा बहुत इजीली, तब अपना वेट हैवी से करना। इसका आंसर मैं देता हूँ, शिवम, एक मिनट, मेरे को ये स्लाइड फिनिश करने दो, उसके बाद मैं आंसर करता हूँ। डू पेड एंड अनपेड इंटर्नशिप।
अगर जॉब नहीं लग रही है तो स्पेशली, instead of doing the all those certification and all those stuff, do all this thing. इंटरव्यू में कुछ आपको ना मिलेगा टू स्पीक आउट कि ये मैंने एक्सपीरियंस किया, ये मैंने किया है काम, ओके, एंड अ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल. सो आपको फिर रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस भी एड ऑन होंगे कि ये मेरा फिर रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है एज कंपेयर टू दोस थ्योरी पार्ट. गाइस जितने भी सवाल अभी मुझसे पूछ रहे हो ना, जस्ट होल्ड इट अ बिट, पूरी स्लाइड खत्म होने दो, उसके बाद एंड में मैं आपके सारे फिर सवालों का आंसर दूंगा, ठीक है? ओके गाइस, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं ये जो भी है फिर सवाल, बहुत इंटरेस्टिंग है एंड मेरे पास इनका आंसर भी है. ओके अच्छा, समवन इज एट द डोर, गिव मी 2 minutes, आई विल बी बैक. थोड़ा सा ब्रेक भी ले लेते हैं, फिर मैं इसको एक बार करता हूँ फिर रिज्यूम, ठीक है? इट्स नाउ टू मच ऑल्सो, जस्ट गिव मी 1 minute or 2 minutes, आई विल बी बैक. So thank you guys for waiting. Okay, Amazon, obviously. So yeah, and by the way, ये बताना भूल गया मैं. I born and brought up in Delhi, but recently shifted 2019. It's not that recent, but shifted to this city, say Mumbai. So yeah, I'm Delhi or Mumbai का relationship, like SIM. It's a pretty amazing city. जो भी कभी यहाँ पे नहीं आए उनके लिए स्पेशली बता रहा हूँ. It's a pretty amazing city. It's a very good economy of India, like the head of the economy, I can say. So it's pretty impressive. Okay, so now resuming to this thing. Uh, like I have seen so many students who want to learn so many things, but they are like कि बहुत expensive है course and everything, and all those stuff. I'm like कि do unpaid or paid internship, तो कोई ना कोई तो hire फिर कर ही लेगा, and you will have the skill set plus you will have the experience as well, right? After that is the another one, uh, the difference between the unpaid, paid and the job. इस स्लाइड का ना स्क्रीनशॉट कर लो, इसके स्लाइड का स्क्रीनशॉट लो, ये हमेशा के लिए वो बन जाएगा बहुत अच्छा फिर डिफरेंस की क्या फर्क है अनपेड और पेड और फिर जॉब में. It is pretty obvious to understand. I'm not going to explain it in this a lot, but I would ask any one of you, every one of you, I will say, to have any question related to this slide only. Please feel free to ask. Anyone have any question? It's a pretty easy to understand this slide. Like थोड़ा बहुत explain अगर मैं करूँ भी तो in the unpaid, of course, वहां पे money नहीं है. on the this thing से कहते हैं क्यों है say this thing से आपका जो हो गया paid, इसमें okay है. a job it also depends on so many things. expectation unpaid में होती है, इतनी भी नहीं होती, they're very low. It's the medium. In the paid the expectation is slightly high, and in the job the expectation are very very high. स्किल सेट रिक्वायर्ड अनपेड है, इतना भी रिक्वायर्ड नहीं होगा, आप सीख सकते हो, राइट? आप सीख सकते हो इन दी अनपेड इंटर्नशिप. बट फॉर द पेड इंटर्नशिप अगेन आपको कोई फ्री में पैसा नहीं देगा, आपके पास कुछ होना चाहिए तो ही आपको वो फिर पेड इंटर्नशिप के लिए हायर करेगा. सिलेक्शन फिक जो सिलेक्शन फिक क्राइटेरिया होता है अनपेड का भी थोड़ा ठीक ठाक ही हो गया आज के टाइम में, बिकॉज बहुत लोग अनपेड इंटर्नशिप अप्लाई करते हैं टू अपस्किल themselves. और पेड के लिए भी हाई है, जिनके अंदर स्किल्स है वो बोलते हैं कि आई नीड टू मेरे को पे मिले तो अच्छा रहेगा. एंड जॉब में तो एक्सपेक्टेशन या सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत हाई रहता ही है. Sakshi, you raised hand, you want to ask anything related to this slide? एक्चुअली सर हमारा ना सिलेक्शन तो हो जाता है, बट ये बेसिकली वहाँ अनपेड मतलब पेड भी मिलता है हमें,
बट ये होता है कि वहाँ पर बोल दिया जाता है कि हमारे को जब हमारी एमबीए क्लियर हो जाएगी तब हमारे को वहाँ पर रिक्रूटमेंट मिलेगा। मतलब हमारे रिज्यूम में कुछ कमी होती है कि हमारे में कुछ कमी होती है, या क्योंकि हमारे को तो सिलेक्ट कर लिया जाता है उस समय बहुत सही टाइम में। सवाल पूछा आपने साक्षी, कि कहाँ पे है वो दैट से दैट चूक, दैट से कमी वो मेरी कहाँ पे रह गई। यस सर। साक्षी, मैं थोड़ा सा हार्श होना चाहूंगा इधर, बट सॉरी, अपोलॉजी फॉर द सेम, बट कमी रह गई रीच में, कमी रह गई उम्मीद में, कि डिपेंडेंसी में, कि वही पे कंपनी मेरे को क्यों इतना कर रही है, क्या मैं इतनी भी नहीं हूं कि मैं कोई और कंपनी मुझे हायर कर ले। मैंने अक्सर ये देखा है कि इंडस्ट्री में, मैं हर कंपनी के लिए ऐसे मैं ये बोल रहा, बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं, कुछ नहीं बहुत सारी, मतलब कुछ कंपनी ऐसी हैं जो बहुत एडवांटेज उठाती हैं इसका, कि आपने अभी अच्छा काम किया तो हम आपको हमेशा के लिए हायर कर लेंगे, एंड दी टर्म्स आर जस्ट नॉट स्पेसिफिक। वो ऐसे भी नहीं कि बहुत स्पेसिफिक है टर्म्स, कि अगर आपने इतनी करी फिर वो इतनी करी फिर सेल्स आप सिलेक्टेड हो, अगर आपने इतने का बिजनेस लेके आए तो सिलेक्टेड हो, इतने का आरओआई लेके आए तो सिलेक्टेड हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, राइट। सो कभी भी ऐसी कंपनी को अपना एडवांटेज मत फेयर करने दो, कि ठीक है, अगर ठीक है आपका ये है, आप मेरे को बताओ। पता है क्या होता है अक्सर, मैं ये बात ना आप सबको बोल रहा हूँ इधर, आप सबको, जब तक आपको आपकी अपनी वर्थ पता नहीं होगी ना, कोई आपकी वर्थ वो भी नहीं पता करने वाला। आपको अपनी वर्थ नहीं पता, लोगों को अपनी वर्थ नहीं पता होती, तो किसी और की तो क्या ही पता होगी। पहले आप अपनी वर्थ को जानो, कि आपकी वर्थ क्या है। अगर वर्थ नहीं है तो वर्थ को बनाओ, ठीक है। अगर वर्थ नहीं है तो उसको उसको उस पे वर्कआउट करो, उसको अच्छे से उसको उसको मतलब लेके आओ। जब आपका वर्थ अगर बन गया तो उसके लिए फिर डिमांड करो। अब मैं जो ये स्टेटमेंट बोलने वाला हूँ, इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझना। जितनी आपको एक जॉब की जरूरत है, जितनी आपको एक कंपनी की जरूरत है, कंपनी को भी उतनी आपकी जरूरत है। इस बात को समझो, ये इतना इजी नहीं अंडरस्टैंड करना। अगर समझ भी जाओ ना तो इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा हार्ड है। जितनी आपको जरूरत है ना एक जॉब की, उतनी ही कंपनी को जरूरत है आपकी। हमको क्या लगता है कि कंपनी को हमारी जरूरत नहीं है, हमको जरूरत है उनकी। इक्वल है, इक्वल, एक हाथ दो एक हाथ लो, हाँ कि ना। यस सर। कोई कंपनी, कोई भी, अगर आपको वो नहीं दे रहा है जो आप उसको ऑफर कर रहे हो, टेक एग्जिट। और भी है बाहर, लोग आके बोलते हैं वेरी मेरी कंपनी बेकार है, अच्छी नहीं है, ये कर रही है वो कर रही है। मैंने उसको बोलता हूँ क्या तू अच्छा है? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बेस्ट हूँ, मैं तो कहीं और चले जा फिर, है ना भाई। कंपनी है, कंपनी है, वो नहीं है कि बस यही है मेरा जो है। अच्छा है, कोई अच्छी कंपनी मिल गई, आई एम हैप्पी फॉर यू, बट डोंट गिव मी दैट स्टेटमेंट और थिंक कि नहीं, ऐसने मेरे को वो बोल दिया, उसने बोल दिया तो उसने बोल दिया, वो आपके लिए पत्थर की लकीर हो गई। कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास। उसने आपको कहीं और अप्लाई करने के स्टॉप किया हुआ है, उसने आपको अपस्किल करने के लिए स्टॉप किया हुआ है, नहीं ना। थिंक लाइक अ, वो छोड़ो अ फाउंडर, थिंक लाइक अ से सिंपली योर सुपीरियर, योर मैनेजर। उसको भी खुश कर दिया तो वही बहुत है। लोग उतना ही नहीं थिंक कर पा रहे आप तो कंपनी के ओनर तक पहुंच गए। ओके, नाउ द फोर्थ प्लेटफॉर्म कि यू शुड स्टार्ट अप्लाइंग फ्रॉम, इंटर्नशाला हो गया, बहुत अच्छी है, जहाँ पे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। से योर ब्लू लर्न, एक नया प्लेटफॉर्म आया है रिसेंटली इंटर्न्स के लिए। लिंक्डइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जॉब एंड और उसके लिए, फिर नौकरी के लिए। एंड फिर नौकरी फिर .com, ऑफ कोर्स, लाइक अ वेरी ओल्ड वन। एंड इन द एंड मेरे को भी कर सकते हो फिर रीच आउट, इफ इन केस आई हैव एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ अनपेड, पेड और जॉब, आई विल डू लेट यू नो, ठीक है।
बिकॉज कुछ है मेरे फिर दोस्त एचआर में, तो मैं उनको भेज दूंगा फिर रेज्यूमे एंड ऑल इफ इन केस दे हैव एनी ओपनिंग फॉर यू गाइस. ओके, बट या इंटर्नशिप के लिए भी हो, अनपेड इंटर्न एंड ऑल, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट. ओके ओके, बट अगेन मेरे हाथ में कुछ नहीं है इतना, ठीक है. मैं उनको बस भेजूंगा, वहां से अगर आया तो आया, ठीक है, लाइक दैट. सो ये एक है. आओ, चूज कर ली कार, अप्लाई कर दिया, ठीक है, अब इंटरव्यू में सिलेक्ट होना है, मेन बात वो है. ओके, सो सो बताओ कितनों को अब तक इंटरव्यू को एक्सपीरियंस है, से एक्सपीरियंस in the comment. I just kind of want to know how many people have you like how many people have experience on this of this. Just a second, no? एक ही को है क्या? Okay. Now, it was a good experience, a bad experience, yeah, okayish experience. शिवम, आखिरी में मुझसे फिर से पूछना. A good, bad, both, and okayish, and okay, a clear, but the salary was not as expected. Okay. Okay. Normal. Good one. Good one. ठीक है. मेरे को अच्छा लगा कि इतने अच्छे हैं वो, फिर रिप्लाईज हैं कि अच्छा एक्सपीरियंस रहा एंड ऑल दोस थिंग. थोड़ा सा ना मैं उसको अपस्किल करने के लिए थोड़ा सा यू नो दी चेरी ऑन द केक, उसके लिए मैं आप लोग को एक कुछ कुछ बता रहा हूँ कि हाउ यू कैन enhance, like how you can uplift your interview skill set. Okay, first of all, उससे पहले बिगेस्ट मिथ मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ. ये जो बोलते हैं ना लाइन कि अभी नहीं हो रही हायरिंग, अभी हायरिंग हो रही है, अभी बूम आ गया है, कि ये वाला महीना होता है जिसमें हाईएस्ट हायरिंग होती है, या दिस इंटरवल ऑफ दिस क्वार्टर, इट्स अ बिग बिग मिथ. इट्स अ बिग मिथ. विकास, ये सवाल मुझसे आखिरी में लेके आना, आखिरी में मेरे पास लेके आना, मैं इसका आंसर दूंगा. इंटरेस्टिंग है ये सवाल भी. नो एक्सपीरियंस एट ऑल. सो हाँ, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ वेरी बिग मिथ कि इसी वक्त हायरिंग होती है, इसी वक्त हायरिंग नहीं होती है. कभी आप ना लिंक्डइन ओपन करना अपना, हर महीने 20-50 लोग अपलोड करते हैं कि मेरी इसमें लग गई जॉब, हर महीने. मतलब क्या ओपनिंग्स नहीं है? ओपनिंग्स हमेशा होती है. आप उनको रीच आउट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, वो मेन है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मिथ को हटा दो कि मैं उसी टाइम अप्लाई करूंगा या फिर करूंगी, ये हटा दो. अप्लाई करते रहो, ठीक है, जॉब लगनी होगी तो फिर लगेगी. अब नाउ, हाउ टू बी इम्प्रेसिव इन योर इंटरव्यू. सी गाइस, मोस्ट ऑफ द पीपल को पता होता है व्हाट, कि कहते हैं व्हाट इट इज, कैसे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज गूगल एड्स, what is Facebook ads, what is advanced analytics, what is business analytics, what is R, what is कहते Python, सबको पता होता है. How, उनमें से किन्हीं किन्हीं को पता होगा कि how to use it, how to use this and that, उनमें से बहुत कम परसेंटेज को पता होगा. When, और भी कम परसेंटेज को पता होगा. यूज करनी है Python, मेरे को आती भी है, बट एग्जैक्टली when मेरे को वो एग्जैक्टली नहीं पता, मेरे को कोई बताने के लिए चाहिए, राइट. And why with example, most rare, but most impactful. अगर आपने अपने आंसर में ये 4 एलिमेंट्स एडअप कर दिए, what, how, when, with why and example, the most impactful answer you will have.
सब आंसर करूंगा, थोड़ा होल्ड बैक करना। फिलहाल जो स्लाइड में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस स्लाइड पे मेरे को रिलेटेड एनी आस्क द थिंग्स, ओके? इन द एंड आई विल आस्क यू टू आस्क मी एनीथिंग, ओके? अभी इस पे कुछ है डाउट जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ? इन योर इंटरव्यू मेक श्योर योर आंसर आर व्हाट, हाउ, व्हेन एंड व्हाई। ये समझ में आया नहीं आया? पहले हाँ या ना बताओ। आया? रिपीट इट अगेन सर। क्या क्या? सिर्फ रिपीट कर दो। हाँ, जब बता रहा हूँ तब नहीं अंडरस्टैंड करोगे। सो अपने इंटरव्यू के आंसर में हमेशा व्हाट, हाउ, व्हेन, व्हाई ऐड अप किया करो। लाइक एग्जांपल मैं सर पूछूं, एक चीज पूछनी थी। इसी से है लिंक्ड है तो ही मतलब की पूछना, इससे लिंक्ड है तो नहीं सर, उससे रिलेटेड नहीं है पर इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। जल्दी पूछो। एक तो मेरे को ना सर सवाल। अभी अभी रिसेंटली ना जॉब मेरा लगा था सर अभी डीयू हाँ में। तो हाँ। उसमें साफ लिखा हुआ है कि एसओएल स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो सर हम में कोई कमी है होती है क्या? नहीं, तो सर हम रजिस्टर क्यों नहीं कर सकते? हमें मौका ही नहीं दिया गया उस इंटर्न वहां पे जाके अपने आप को प्रेजेंट करने का। सर हमें कहाँ से हम सिलेक्ट होंगे सर? तो एक ही स्टेज है ऐसा क्या क्यों आपके पास? ऐसे क्यों हो रहा है एक सर नहीं हमारे नहीं, साथ? एक ही स्टेज है क्या आपके पास? और स्टेजेस नहीं है क्या आपके पास? सर बात एक स्टेज की नहीं है पर बात है कि हमारे साथ ये नाइंसाफी हुई। एक्चुअल अपना कॉलेज बंद क्यों नहीं कर देता अगर वो हमें जॉब देने के लिए सक्षम ही नहीं है तो? सी, इसका आंसर मेरे पास भी एग्जैक्टली नहीं है ऑनेस्टली, बिकॉज मैं उनका इतना नहीं इंटीग्रल के वो हूँ दैट के पार्ट। बट आई विल से वन थिंग फॉर यू स्पेशली, कि कोई भी अगर डोर बंद कर रहा है, कोई भी अगर बोल रहा है कि नहीं है ये है, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग सैड ऑन दैट, और भी स्टेजेस हैं ब्रो। एक पे मत करो इतना वो रिलाय। एक पे इतना मत करो फिर रिलाय एनीवन। मैं सच बोलूं, इट माइट बी हार्श फॉर सो मेनी ऑफ यू गाइस, बट अपने पेरेंट्स पे भी इतना मत करो फिर रिलाय, अगर मेरी बात मानो तो। यार, भगवान ने हाथ पांव दिए हैं, आंख है, मुंह है, जबान है, मेरे को बोलना आता है, आई एम हेल्दी। मैं अपने आप नहीं कर सकता क्या? हमेशा मेरे को किसी की सपोर्ट की जरूरत? ठीक है, मेरे को जो भी लग रहा है कि ये नाइंसाफी हुई है, नहीं हुआ है सही, ठीक है जो भी है, बट अगर वो करेंगे तो आपके पास कुछ और ऑप्शन नहीं है क्या? बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आज ये लाइन जो आप बोल रहे हो ना, अभी तो एज बहुत लो है, अभी तो कुछ भी एज नहीं है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं अंकलों वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि बेटा आगे जाके पता लगेगा ये वो, बट इट्स अ फैक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत आगे इंक्रीज हो जाती हैं। और वो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं फिर समझेगी कि मेरे को वहां से मना हो गया इसलिए मैं नहीं कर पा रहा। ठीक है, आई नो आई एम बीइंग वेरी हार्श, बट इट्स द अगली फैक्ट। ब्लेम करना बहुत इजी है ना। क्या? बस ब्लेम? सर रेगुलर में ना हमारे को कहीं मतलब लिया ही नहीं जाता है सोल पर्सन को। रेगुलर को हर चीज में रेगुलर पर्सन मैम को एक मैम, आप बोल रहे हो रेगुलर। उनका स्ट्रेस अलग है। उनका स्ट्रेस क्या है कि अगर 60% नहीं है तो है, 80 वाले नहीं हो तो है। हर जगह एक ना एक तो मतलब की फिल्टर आएगा ही आएगा। चाहे फिर आपका फिर वो हो गया, फिर रेगुलर हो गया, या आपका ओपन से हो गया, वो फिल्टर कोई ना कोई भेदभाव आएगा ही आएगा। आईआईटी से हो, आईआईटी से नहीं हो, आईआईएम एमबीए की है, एमबीए नहीं की है, हर जगह आएगा कुछ ना कुछ। आगे आगे एक इंटरव्यू में पक्का, ये मेरे साथ हुआ है। आपने एमबीए नहीं करी और आप इसमें इतने एक्सपर्ट हो गए मार्केटिंग में, हाउ? अब मैं क्या बोलूं उसको, बताओ। मतलब मैं ठीक है, अगर वो मेरे को एमबीए के हिसाब से कर रहा है जज, तो उसके लिए। मैं अपने आप को एमबीए से नहीं करता ना जज।
बट अगेन आई हैव टू कम्युनिकेट कि मेरे पास वो स्किल सेट है. हाउ कैन आई कम्युनिकेट इट? हाथ में हाथ रख के तो नहीं बैठने वाला मैं. Am I making any of the sense here? देखो एंड है लाइक इस पे, इस वाले उस पे सवाल पे ब्लेम करते रहो उनको. ओपन है, हम लोग ओपन से हैं, जो फिर रेगुलर है उनको स्टेज मिल रहा है, ये है वो है. इंडिया वाले अमेरिका को ब्लेम करते हैं, और ह्यूज स्केल में. लाइक मैं अगर अपने स्केल पे आ जाऊं कि अरे वहां पे तो क्या इनकम मिलती है, इंडिया वाले तो, हम इंडिया में तो कुछ भी अर्न नहीं कर रहे हैं. ब्लेम करने को तो बहुत कुछ है और हमेशा रहेगा. इट्स ऑन यू टू टेक द लीड. ये बात शायद आज समझ में ना आए, बट आई होप एक दिन समझ में आ जाए. ठीक है, ब्लेम हमेशा रहेगा, हमेशा. चलो मेरे को स्लाइड खत्म करने दोगे आप प्लीज? 2 बजने वाले. ठीक है, ओके. सो अभी चलो, कभी कहीं इंटरव्यू दोगे भी ना, तो या कभी स्टडी करो भी, तो ऑलवेज फोकस ऑन योर वाई एलिमेंट, कि वाई यू शुड डू दिस थिंग. लाइक फॉर मी आल्सो, इफ आई एम एडवाइसिंग यू एनीथिंग, आस्क मी व्हाई, कि नितिन व्हाई वी शुड एग्री विद यू. क्या है मतलब, लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स. आजकल क्या हो रहा है ना, ऑनलाइन जो भी वीडियोस हैं या जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, इट इज अ वन वे फॉर कन्वर्सेशन, इंटरेक्शन और कन्वर्सेशन. जैसे आज आप मुझसे अनम्यूट होके मुझसे सवाल पूछ पा रहे हो ना, ये आप ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर या ऑनलाइन वीडियो से नहीं पूछ सकते. तो ये बहुत बड़ा वो है, दिस इंपॉर्टेंट थिंग. थैंक यू, थैंक यू सुजय. बट या वन वे जितना भी होता है कन्वर्सेशन, उसमें अपना वाई एलिमेंट एडअप करो. अगर वो आंसर नहीं कर पा रहे, कहीं और जाओ, बट ऑलवेज वर्क ऑन योर वाई एलिमेंट, कि मैं आपकी बात को क्यों मानूं, आप जो ही बोल रहे हो क्यों सही है. वाई वाई वाई, ईच एंड एवरीथिंग वाई. अगर आपने बोल दिया ए अच्छा है बी बेकार है, ए अच्छा क्यों है? किसी के पास अगर स्ट्रॉन्ग वाई नहीं है ना, तो सही. और मैं एक बात बता दूं, द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ डिक्टेटर एंड अ गुड कहते से मैनेजर और गुड कहते हैं लीडर, इज अ वाई का फिर डिफरेंस. डिक्टेटर के पास कभी स्ट्रॉन्ग वाई नहीं होता. वो बस बोल देगा ये मेरा आदेश है. क्यों? वो मैं आंसर नहीं कर रहा, इसलिए तो मैं हूं डिक्टेटर. एक जो होता है फिर लीडर, ही और शी विल ऑलवेज हैव अ वेरी गुड व्हाई, दैट व्हाई आई एम आस्किंग यू टू डू दिस. A good teacher, a good leader always have a very good why. So focus on your why. Okay guys? Okay, any doubt on this slide particularly? Okay, so let's go ahead. एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है बहुत, कि यू नो हम लोग रीडिंग में, डूइंग में तो बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं, बट टीचिंग में उतना अच्छा नहीं रह रहे. एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये टीचर हो जाओ आगे, ऐसे ऐसे हो जाओ, उससे नहीं मैं ये सब बोल रहा हूँ. मैं ये सब बता रहा हूँ कि इन द इंटरव्यू ना, so the irony of the interview is कि you are being a student in the interview, you are a you suddenly you just you we expect you to be a teacher, और इंटरव्यू स्टूडेंट हो जाता है. से उर्मिला, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? सो मैं स्टूडेंट बन गया और आप बन गए टीचर. या राहुल, व्हाट इज बिजनेस एनालिस्ट जॉब? लाइक मैं एकदम स्टूडेंट बन जाता हूँ, और हम लोग क्या होते हैं, हम लोग स्टूडेंट्स होते हैं, और हम लोग को एकदम से कोई बोल देगा कि तुम बन जाओ फिर टीचर, हम नहीं बन सकते. ऑब्वियस थिंग, राइट? बट इंटरव्यू में हमको एज अ गुड फिर टीचर एक्सपेक्ट किया जाता है, और जो सही भी है. और वो भी छोड़ो, अगर आपको कोई चीज में एक्सेल करना है ना, हासिल, सो
if you start teaching to anyone else na, you will know that thing in and out. Okay. सर जैसे हमने कल लास्ट टाइम इंटरव्यू लिया था, बच्चों का भी लिया था, हमने सेशन एडवांस का हुआ था ना हमारे इवेंट प्लेसमेंट ड्राइव का, तो हमने भी इंटरव्यू लिए थे बच्चों के। फिर हमारा उसमें एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा गया है। तो फिर आगे फिर क्या था सवाल? हमने जो मतलब कम्युनिकेशन पूछा उनसे, पर उनको कम्युनिकेशन ही नहीं आती थी, बच्चों को बोलनी नहीं आती थी। क्योंकि उन्होंने कभी किसी को कुछ एक्सप्लेन नहीं किया ना। राइट सर, राइट। किसी के बारे में उनको नॉलेज है पर उनको एक्सप्लेन करना नहीं आता। वही तो बोल रहा हूँ मैं, टीचिंग स्किल्स पे फोकस करो अपना। कोई नई स्टूडेंट मिल रहा, बोलो कि मैं तेरे को फ्री में बताएगी, या मैं तेरे को फ्री में मैं एक्सप्लेन करेगा फिर, या फिर यू नो आई विल जस्ट टीच यू फॉर फ्री। वो आपकी फिर टीचिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी। मैं वही तो बोल रहा हूँ इन द स्टार्टिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन की टेक्निकल स्किल्स इंपॉर्टेंट है, बट सॉफ्ट स्किल्स थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या सवाल है मेरा? वी राइट। मैं सच बता रहा हूं, मैं खुद जो ये सीखा हूं ना, फिर डिजिटल मार्केटिंग सिखा के सीखा हूं। आई बिलोंग अगेन, सॉरी टू बी सेइंग दिस रिपीटिवली, बट बिलोंग टू द फर्स्ट जनरेशन। बहुत मेरे लोग अंडर आए जिनको मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ा कि क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग, फ्रॉम वेरी वेरी बेसिक्स, उधर से इतना ऊपर लेके आया मैं। तो जितना आप करोगे टीच, उतना आप अपने स्किल्स पे अपस्किल करोगे। ओके ओके, नाउ टू अनलॉक द फुल पोटेंशियल, ये रोड मैप है, याद कर लो, समझ लो, सीख लो और कर लो। लर्न, उसके बाद डू इट, उसके बाद एक्सप्लेन इट, उसके बाद ऑप्टिमाइज इट एंड स्टार्ट अगेन। जितनी बार ये लूप रन करोगे ना, उतना इंप्रूव हो जाओगे। एम आई मेकिंग दिस सेंस हियर? लर्न, डू, फिर टीच, फिर ऑप्टिमाइज योर अप्रोच। सी कि ये मैंने एक्सप्लेन करना चाहा बट अगले को समझ में नहीं आया, व्हाई? आपको क्या लग रहा है मेरे ये फर्स्ट है क्या जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको? इट इज दी कहते से दी फर्स्ट टाइम आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू ऑल। मैंने कितनों को ही एक्सप्लेन किया हुआ, कितनों को, इसलिए मुझे इतना एक्सप्लेन करना आता है, राइट? इसलिए मैं इतना वन वे हो पा रहा फिर सेशन। ओके, और जिनको ये डर है एआई मेरे लिए दिक्कत करेगा, एआई नहीं है, एआई इज योर ह्यूमन। तो जस्ट प्लीज मेक श्योर, जैसे किसी ने, सबने तो आयरन मैन तो देखी होगी, वही सेम एग्जांपल है। इट इज एन एनहांसमेंट एड ऑन फॉर अस। एआई पे इतना भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, बट इतना उसको, उससे इतना फियर भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको आता है विदाउट एआई, अच्छी बात है। आपको विद एआई और अच्छे से आता है तो बहुत अच्छी बात है। कूल। तो अगर किसी के मन में ये है सवाल कि एआई के से क्या होगा, इंडस्ट्री हिल जाएगी, जॉब हट जाएगी, तो ये उसका आंसर है। नाउ, how many of you are interested to know, once you are selected, how to thrive? Say yes. Thank you Urmila, thank you. वो किसी और का था, मेरे को बहुत अच्छा लगा, but it was very like, you know, to the point. Now guys, how to thrive, how many you are interested to know? तब मैं continue करूं how to thrive in the industry? Say yes. Say yes, who are interested. Awesome. Okay, so now I have the interest of you all. चलो ठीक है।
Okay, then so let's start. So, you know, if you have this for a ratio na in a very good क्या say कहते portion, सक्सेस की चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे. First, be a problem, problem solving person. Just not be like say कि issue हो गया, अब क्या? आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए. एंड it's not like increasing the resources or like increasing the money or the time. With all those limitation, how you can fix that issue, ये इस पे वर्क करना सीखो. Like industry expect you to be a problem solver within the resources, the money, the time, everything. How you can fix the issue. Be a strategist. Strategy बनाना सीखो. For days, for months, for year ahead कि क्या स्ट्रेटेजी है. और एक वो लाइन है ना असेंबली में, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, हमको मन की शक्ति देना. तो दूसरों की स्ट्रेटेजी बनाने से पहले खुद की स्ट्रेटेजी को बनाए, खुद के लिए बनाए, इंप्लीमेंट करे. क्या स्ट्रेटेजी है, क्यों स्ट्रेटेजी है. स्ट्रेटेजी बनाने से फियर ना करें. ये मत बोले कि जो मैं सोचता हूँ वो नहीं होता है. जो मैं सोचता हूँ वो नहीं होता है तो कुछ ना कुछ वजह है जो मैं जो फिर शायद नहीं मैं ठीक से फिर सोच रहा हूँ. हाउ कैन आई इंप्रूव माई सोच. मैं जो स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ वो ठीक से नहीं. जस्ट इमेजिन, आप जो अपने लिए बना रहे हो आप वो नहीं इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, आप पूरे इतने बड़े बिजनेस के लिए बनाओगे वो नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा. कितने एम्प्लॉयज का इश्यू, कितने एम्प्लॉयमेंट का इश्यू आ जाएगा. राइट, लोग जॉब से हटेंगे, आरओआई नहीं आएगा, बहुत बड़े बड़े इश्यूज आ जाएंगे. आज तो आपकी खुद की जिंदगी आपकी स्ट्रेटेजी पे डिपेंडेंट है, कल आपकी स्ट्रेटेजी पे बहुत सारी फिर जिंदगी डिपेंडेंट होंगी. ठीक है, तो स्ट्रेटेजिस्ट, एक अच्छा स्ट्रेटेजिस्ट भी मतलब बने. गुड राइटर, प्लीज I request everyone to be a good writer. Helps everywhere, emailing, documentation, speech, everything. एक अच्छा ही राइटर बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर नहीं है तो फिर लिखो, बहुत लिखो. वो लिखने से ही सही होता है. लोग बोलते हैं कि रीडिंग से सही होता है, मैं उसके लिए मना नहीं करूंगा, बट लिखने से ज्यादा होता है. सो लिखो. बी अ गुड स्पीकर. आई हैव ऑलवेज एम्फसाइज्ड दिस अ लॉट. अगर नहीं हो, join a Toastmaster. There are so many Toastmaster happening in your near areas. वहां जाओ. थिएटर करो ज्वाइन, एक्टिंग स्कूल करो ज्वाइन. एक्टर्स का मतलब वो नहीं है कि बहुत बेकार चीज है. एक्टिंग करना, अपने इमोशन को फिर कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात होती है. आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर द एक्टर्स. इट्स अ बिग आर्ट. सपोज करो आपका मूड ऑफ है और आपको बोला जाए कि स्टेज में आपको लोगों को हंसाना है. इट्स अ बिग डील, राइट. फिर थिएटर करो ज्वाइन. स्टेज का फियर हटेगा. स्टेज का जो फियर है वो हटेगा. स्टेज में आने से नहीं लगेगा डर. टू हैव दैट माइक, टू हैव दैट कैमरा इन योर फ्रंट, नहीं लगेगा फियर. अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करो, हो सके तो अपलोड करो. बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए मेरे लिए तो. एटलीस्ट मैं बहुत वक्त से वर्क कर रहा हूँ. अभी मैंने फिर जाके वीडियोस अपलोड करना शुरू किया है. इट्स प्रीटी हार्ड, बट कर रहा हूँ. अगर नहीं है कुछ भी हो रहा तो फिर कॉल सेंटर में जॉब कर लो. इंग्लिश वाले में जाओ. अगर बोलते हो कि मेरी इंग्लिश थोड़ी बहुत वीक है और इम्प्रूव हो सकती है, गो टू अ इंग्लिश कॉल सेंटर. जो भी मिले पे, आने आने और जाने का पैसा मिल रहा है, मोर देन इनफ है. कई इंस्टीट्यूट में इंग्लिश का कोर्स करने से अच्छा है कि कहीं ना कहीं तो फ्री में मिल रहा है इधर तुम्हें सीखने को. राइट, किसी कॉल कॉल सेंटर में जाके कर लो जॉब. अगर मेरे को किसी ने बताया होता ना कि पहले जाके कि तू कॉल सेंटर में भी कर लेगा जॉब, कोई बुरी बात नहीं है, मैं पक्का करता. और किसी ने बताया नहीं, खैर वो अलग बात है. टीच न्यू स्टूडेंट्स. एक्सप्लेन थिंग्स टू द न्यू स्टूडेंट्स. वो जो भी हैं इन द इंडस्ट्री, उनको एक्सप्लेन करो अबाउट योर स्किल सेट, अबाउट योर फिर नॉलेज. ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव होगी.
स्पीकर, राइटर और प्रॉब्लम सॉल्वर, स्ट्रेटजी, ये 4 एलिमेंट्स का एक गुड रेशियो रखो इंडस्ट्री के अंदर, बहुत हेल्प मिलती है। ओके गाइस, एक मिनट, सॉरी। ओके, नो द एग्जैक्ट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री में, ये बहुत होता है दिस थिंग से अ लैक अ लॉट। एक अच्छा पता होना चाहिए वक्त कि मैं अपडेट कब करूं, मैं कितनी फिर डिटेल्स दूं, मैं कितने को दूं, बहुत स्मॉल है, आई एम प्लेइंग कहते वेरी सेफ। तो एक अच्छा रेशियो होना बहुत इंपॉर्टेंट, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, एक सही के वो रखना। मैंने बहुत बार देखा है ऑफिस में लोग बहुत अर्ली एकदम अलर्ट भेज देते हैं, कुछ होने वाला है, अरे हुआ ही नहीं है, जब हो जाएगा तब बता देना, हो गया इतने वक्त के बाद क्यों मेरे को इन्फॉर्म कर रहे हो, ऐसे इश्यूज ना हो। इट्स वेरी हार्ड बट इट्स अ थिंग विच यू शुड से वर्क ऑन, like updating soon or updating late, too much of a detail या very small detail, सबको मेल भेज दिया या एक दो कोई मेल भेजा, उसको उसको भेजा ही नहीं जिसके लिए इंपॉर्टेंट था, and all those things. But to everyone I will say one thing, जब भी कोई प्रॉब्लम लेके आओ ना, इनफैक्ट जो आज भी आप लोग के पास है, सिंपली ये मत लेके आओ कि मेरे पास ये इश्यू है इसका आंसर दो, ना 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 ना, ये हो गई आम जिंदगी। मैं आपको बताता हूँ मिनटॉस जिंदगी, जो मिनटॉस होती है ना जिंदगी, उसमें पता है क्या होता है कि नितिन ये इश्यू है, मेरे हिसाब से इसके ये सॉल्यूशन है ABC, आपके हिसाब से बताओ इनमें से सही क्या है, या कोई और है तो आप मेरे को वो बताओ। दिस इज द मिनटॉस जिंदगी। एम आई मेकिंग द सेंस हियर टू एवरीवन? थैंक यू। एकदम से आया आइडिया, ऐसा कुछ स्क्रिप्टेड नहीं था बट आया एकदम से। इश्यू सबकी जिंदगी में है। अभी तो ऑफिस में एंटर होके बहुत इश्यूज आएंगे आगे लेके कि ये इश्यू है, अरे ठीक है भाई, कुछ है इसके पे सॉल्यूशंस, हाँ ABC ये है, आपको ये अच्छी लगे तो आप बता दो, बट करना तो है सॉल्व। ओके गाइस, एम आई मेकिंग द सेंस हियर? चलो अगली साइड में फिर चलते हैं। थिंग्स टू अवॉइड इन द इंडस्ट्री, प्लीज रिक्वेस्ट है आप सबसे, मेरी रिक्वेस्ट ही है, रिकमेंडेशन भी नहीं है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, वो भी आपकी भलाई के लिए एंड ऑफ द डे, कि ये 3 चीजें अवॉइड करना इन द इंडस्ट्री। आई थॉट सो द फर्स्ट थिंग, या रवि, बिकॉज थोड़ा सा वो हो गया लेट, बट या आई एम जस्ट फिनिशिंग इट। आई थॉट सो, थोड़ा सा ये मत थिंक करना है कि मैंने ये थिंक किया तो इसलिए मैंने ये इम्प्लीमेंट किया, ठीक है? ओनली वर्बली सब कुछ बता रहे हो, रिटर्न में कुछ भी एविडेंस नहीं है, इट इज ऑल्सो जस्ट नॉट द राइट अप्रोच। ओके, किसी को भी माइक्रो मैनेज मत करना और खुद भी अपने आप को माइक्रो मैनेज मत करने देना। अगर कोई आपको माइक्रो मैनेज फिर कर रहा है, थिंक लाइक व्हाई द अदर वन इज माइक्रो मैनेजिंग यू, क्या उसको आप पे वो नहीं है, फिर ट्रस्ट नहीं है ना, हाउ यू कैन गेन दी ट्रस्ट ऑन हिम और हर, ठीक है? आई थॉट सो का मतलब मेरा इधर वो था, मैं थोड़ा स्लाइड में ये एक्सप्लेन करना भूल गया, थोड़ा स्किप हो गया। आई थॉट सो मतलब कि मेरे को लगा इसलिए मैंने ये किया, नहीं 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 नहीं, आस्क द अदर वन, क्या आप मेरे को चाहते हो मैं ये इंप्लीमेंट करूं? अरे माइक्रो मैनेज मतलब एक एक आवर का हिसाब किताब दो, ठीक है? तो वो होता है, वो दैट इज माइक्रो मैनेज। आई थॉट सो का मतलब मेरे को लगा इसलिए मैंने ये इंप्लीमेंट किया, ऐसा मत करना। फर्स्ट आस्क, क्या आपको यही फिर चाहिए तो ही मैं इंप्लीमेंट करूंगा, या फिर एक्चुअली फिर मैं इसको इंप्लीमेंट फिर करूंगी, ठीक है? लास्ट स्लाइड बट वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, लाइफ से लाइफ पॉलिटिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये मेरी खुद की थ्योरी है,
तो थोड़ी सी वियर्ड भी है बट अच्छी है. So there will be three person in your life. Push, pull. ये आपकी लाइफ है. आप यहाँ पे आपको मिलती है सक्सेस. आपको तीन ही लोग मिलेंगे. एक आपको जो करेंगे पुश कि आगे तू बढ़, आप आगे जाओ. एक होंगे पुल जो आपको उल्टा फिर खींचेंगे. और एक होता है बैग जो ना आपको उल्टा खींच रहे हैं ना आपको धक्का दे रहे हैं बट देयर आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. आप उनके बिना रह भी नहीं फिर सकते. बैग आपको चाहिए चाहिए. अब आप ये नहीं बोलो कि बैग मैंने मतलब फेंक दिया मैं अकेले निकलूंगा. नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर इंपॉर्टेंट. बट ये जो है ना से योर पुश एंड पुल, ये आपको आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन कौन आपकी 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 जिंदगी में ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको करते हैं पुश, और फिर आपके फिर कौन से लोग हैं जो आपको उल्टा पे करते हैं पुल, और कौन से लोग हैं जो आपके फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर आते हैं. आपको ये पता होना चाहिए. इट विल हेल्प यू अलॉट. हाउ वो मैंने एक्सप्लेन करा. आई नो यू ऑल आर इतना स्मार्ट. उतना मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. सबके लिए अलग पुश हो सकते हैं. सबके लिए कोई भी हो सकता है पुश. एनीवन कैन बी कहते दैट आल्सो योर कहते दैट आल्सो योर से योर कहते पुल आल्सो. एनीवन. ठीक है. तो पुश पुल एंड फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना सीखो अपनी फिर जिंदगी में. बहुत कुछ इजी हो जाएगा. चलो. And now the last slide. Thank you so much, everyone. Now you are feel free to ask anything. Ask me anything. And this is my LinkedIn profile, and this is my website. Please feel free to visit them. And yeah, feel like to ask anything. Please feel free to ask. हाँ तो फिर शिवम सर स्टॉक एनालिसिस और मार्केट एनालिसिस चार्ट रीडिंग में सब हॉबीज बता सकते हो शिवम, बता सकते हो. बट ये ऐड ऑन जरूर करना कि हाउ इट इज हेल्पफुल फॉर द जॉब टू विच यू आर अप्लाइंग फॉर. अगर आप बिजनेस एनालिटिक्स में अप्लाई कर रहे हो, इमेजिन आप बोल सकते हो आई हैव अ इंटरेस्ट ऑन स्टॉक मार्केट एनालिसिस एंड ऑल व्हिच विल बी वेरी हेल्पफुल इन द बिजनेस एनालिस्ट आल्सो, राइट. सो एक वो चीज आ गया इधर. This must my Hi first. everyone. Hi Nitin. Oh, Thank you everyone for joining. Thank you Nitin. It was a very interactive session. This is one of the most interactive session we have ever had. We have generously shared your expertise in a very well mannered and interactive manner. And most of the people liked your session, and throughout this session most of the people were available. The dropout ratio is very low this time. And I would like to share a point every time most of the workshops done by any say, experts, everyone advise our students to maintain their LinkedIn, and I hope our students are managing their LinkedIn too. And lastly, I would like everyone to follow the social media handles of Placement Cell of DUSOL. I hope everyone would have get the links with the invitation. And if anyone would have any doubts, you can share it now. And I think there may not have any doubts, as Nitin took every doubts slide by slide. So Yeah, raise your sure. hands if you have any query, if any people have left with any query. I think there are few, but I'm happy to answer them like separately. They can reach me out on my platform LinkedIn, so I will be answering them. So no worries like that. We can end this a session. But Kanika ka answer करना चाहूँगा to internship. Now I've applied for a job. The interview said that internship was no a basic. How much English is important for us? Very, very important. No other option we have, unfortunately, but it's a fact. I have done 2 internship in HR, but now when I applied for a job, the job and the internship, they should be similar. बहुत अलग होगा तो बहुत इतना थोड़ा सा उल्टा impact आ जाता है. So those things are there. And yes, man, it's ऐसा नहीं है. To everyone I will say कि यही आपका workshop नहीं है कि जहाँ पे you can ask me anything. Please reach out to me on say LinkedIn. I am happy to answer everyone. Okay. Chalo, Ravi, I won't be taking much of your time. I thank you so much
for this opportunity. I hope everyone enjoyed this one. Yeah. Yes, Nitin, thank you very much. Everyone joined, and it was the most interactive session we have ever had. This was best session. Is that happy to hear, man? Happy to hear this. Chalo. Thank you, Nitin sir. Okay, Yeah. Thank you, sir. everyone can leave. Everyone can leave now. We are ending the session officially. Sure. Thank you. Have a Thank good you. day, everyone. Have a good day, Nitin. Thank you again. Thank you for taking No your worries. precious No worries. time for us. No worries. Okay, guys. Bye bye. Take care. Chalo. Thank you so Bye. much.